So yes, good morning all, and welcome to the first lecture of BSc first year semester one uh, electronics. Right. I hope you have taken the admission in electronics with some view, or might be due to reason that you have not got admission anywhere, and that's why you are supposed to land in electronics as well. So whatever may be the case, I expect you that you have taken your admission in BSc Electronics with a intention to study a new subject. Whether you are the student of electronics or not is immaterial. But yes, of course, we are going to see what are the prospects of electronics in the careers as such. Why? What is the importance of electronics, right? So yes, shall we start with this? So I hope you all are ready and eager to hear from me why what is the need of taking electronics, even if some of the students are have dropped out. Still, I will recommend you or advise you to take this admission in electronics because we have many advantage of taking electronics. Now, if you are able to see in your near environment, electronics is everywhere. You are able to see everything in electronics right now. Okay. So electronics is a daily need of each and every person, and without electronics, we are not able to say visualize our life. If you remember this, if you practically experience these things, right? So, and why this is a slag, and why the students are not opting for electronics then? The main reason of not opting electronics as a subject, as a specialized subject, is due to the dropout of the teaching in engineering faculty, right? But in BSc, we are very, say, we are anxious and we are very motivated to teach you the basics of electronics as well as the future advancements of electronics. तो हमारा ये हमेशा उद्देश्य रहेगा कि हम लोग आपको बहुत अच्छा, आई होप आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, इंग्लिश और मराठी. Anybody? I'm comfortable in all the three languages, but I will try to mix it up because hopefully there are many students who won't be able to understand English that fluently. So मैं कोशिश करूंगा, बट जब कभी भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊं, ताकि आप उसको इंग्लिश में ही समझे और इंग्लिश में ही उसको लिख पाए, राइट? तो हमारा सबसे पहला ये था कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लेना है, ये सबसे पहला है, क्योंकि जब तक कि हमारे दिमाग से ये चीजें नहीं निकलेगी कि मुझे कहीं और एडमिशन नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, ये जब तक के व्यू हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में असमर्थ रहेंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा व्यू क्लियर नहीं है. तो हम लोग एज सच ये सब्जेक्ट ऐसा लेंगे कि अरे यार ठीक है, हमको कहीं एडमिशन नहीं मिली इसलिए हम लोग यहाँ आ गए, अब पढ़ते हैं, देखते क्या हो. तो ये व्यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. और मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेसिफिकली हमारे मोहता साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मोहता श्री मथुरादास मोहता कॉलेज ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो बहुत डायनामिक होते हैं एंड वो इतने वाइब्रेंट होते हैं कि आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट. एंड आई वांट दैट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. तो आज ठीक है, वी आर मीटिंग वर्चुअली, बट स्टिल हमारे पास अभी एट प्रेजेंट जो भी कुछ अवेलेबल सोर्सेज, सॉरी, जो कुछ भी अवेलेबल अभी सोर्सेज है, वो सोर्सेज पर हमको काम करना है, राइट? आई होप सम पीपल्स आर नॉट एबल टू ज्वाइन, सो I request you to just WhatsApp me on our group so that we will be able to understand, right? So what happened now कि हम लोगों के पास बहुत सारी चीजें जो हम लोग करना चाहते हैं,
क्या हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड है? सबसे पहले तो ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में यू कैन डू वंडर्स, देयर आर लॉट मोर स्पेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू डू। अब हमारा व्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को किस प्रकार लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन की है, उनमें से कुछ लोगों का ऐसा व्यू होगा कि हमारे को सिर्फ डिग्री चाहिए सर, राइट, सिर्फ मुझे बीएससी की डिग्री चाहिए। तो क्या मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करके डिग्री ले सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स ले सकते हो आप। तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करके अगर मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, मुझे मेरा एम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो फिर मुझे क्या करना है एक्चुअली? तो मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ फिजिक्स एक चैप्टर क्लब में है, साथ में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, ये एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, राइट। तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़ने वाले हैं वही सिलेबस फिजिक्स के फाइनल ईयर में, राइट। तो आप जितना भी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बाय डिफॉल्ट फिजिक्स में फाइनल ईयर में पढ़ना ही है। तो आपका एक सब्जेक्ट वैसा ही क्लियर हो जाता है। आपके जितने प्रैक्टिकल्स आप लोग फर्स्ट ईयर में करने वाले हो, वो प्रैक्टिकल्स आपके फिजिक्स के फाइनल ईयर में है। तो मतलब along with that you are just going to complete your physics also. So इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट इजी हो जाता है, कन्वीनियंट है, आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आना जरूरी नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए। बट यस, मुझे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं चाहता हूं कि मैं जब भी पढ़ाऊं तो उस लेवल पर पढ़ाऊं कि आपको कुछ भी नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको जीरो से स्टार्ट करना है, राइट। तो देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और एन अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। सो हम लोगों को सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वाई वी आर टेकिंग एडमिशन, वाई वी हैव टेकन एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दिस इज द बेसिक दैट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है ये। एक सेकेंड, sorry, it was an urgent call, that's why I was not able to connect, because it was from the secretary of our college management, so I have to take that call. Okay, so we were talking about why electronics is so important in our day-to-day life, right? So as you know that electronics is ruling the world right now. So we have very much advancement in electronics, and we need to develop those electronics, right? So we basically, the students of the electronic subjects, are dealing with those things which are very essential for the livelihood or day-to-day life, and we are supposed to be responsible to deal with those things, to interact with those things, and to develop all those instruments, right? तो हमारा ये काम होता है कि हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से हमको उसको लेना है। अब ये चीजें कब होगी? जब आप लोगों को इसका बेसिक्स आएगा, बेसिक नॉलेज आएगा, और जब आप इसका बेसिक नॉलेज लोगे धीरे धीरे धीरे, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है। इसके वजह से मैं चाहता हूं कि हमेशा हम लोग यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि एक सब्जेक्ट है हमको कंप्लीट करना है, इस एंगल से नहीं लेना चाहिए, राइट। ये एक पार्ट। सेकेंड पार्ट, यू हैव मेनी जॉब प्रोस्पेक्टस। आप अगर डिपार्टमेंट आओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आओगे, तो मैंने एक बोर्ड लगा के रखा है कि आपको कहाँ कहाँ जॉब के प्रोस्पेक्टस है। आप सिर्फ फर्स्ट क्लास में पास होइए, आपको बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज है। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कीजिए,
हम लोग फॉर्चुनेटली इस साल एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स डाल रहे हैं, तो अपने कॉलेज में ही पोस्ट ग्रेजुएशन का फैकल्टी चालू हो जाएगी एमएससी की। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बाद आपको स्काई इज द लिमिट वाला काम। इसके साथ साथ वी आर हैविंग MOUs विद IC रोबोटिक्स, द एटलांटा बेस्ड कंपनी, सॉरी कनाडा बेस्ड कंपनी है जो रोबोटिक्स में डील करती है, रोबोटिक्स बनाना, रोबोटिक्स के बारे में अलग अलग प्रकार के रोबोट्स बनाना, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग कब सीख पाएंगे, जब हमारे को इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ये आएगा। और ये समझने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट lecture that I'm telling you, as I'm taking your first lecture, is to let you know what is the importance of electronics, not because to कि सिर्फ हमारे को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, राइट। आप जब तक के उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे तब तक के आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझ सकते हो या पढ़ सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग इज टू डेवलप द इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों के लिए जो फैकल्टीज है अपने कॉलेज में वो इतनी अच्छी है, सबके सब टॉप है, टॉप लेवल के है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ PhDs, द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ PhDs आर इन आवर कॉलेज। So it's a great privilege for you people to take maximum advantage of these resources that we are having in Mohta Science College. तो ये एक पार्ट है। आप लोगों का जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज है उस पर आप लोगों को साथ ही में फोकस भी करना है। ये हम लोग बहुत सारे इवेंट्स लेते हैं। हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे कॉलेज में अकेला सिंपोजियम लेता है, जो कि स्टूडेंट्स बना लेते हैं, स्टूडेंट्स ही सब करते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को उस प्रकार से ढालने की कोशिश करता हूं कि उन लोगों ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, खुद ऑर्गेनाइज करना, उसको फ्रूटफुली हैंडल करना और उसको प्रेजेंट करना, ये सब आप लोग करोगे। तो ये सब कब शुरू होगा, जब आप लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। अभी ऑनलाइन शुरू है, इस वजह से ऑफलाइन जब हम लोग शुरू करते हैं तो ऑफलाइन में सबसे पहला काम, यानी आप अभी आ जाते तो ये महीने में हमारा इनॉग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, सेकेंड आपका पोस्टर कंपटीशन, यानी आते साथ ही आपको एक पोस्टर बनाना होता है। तो लेट्स होप फॉर गुड कि जल्द से जल्द ये हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पोस्टर कंपटीशन जो है, पोस्टर बनाने वाला जो पार्ट है वो हम लोग ऑफलाइन ही ले। तो आप अपने घर में बैठ के पोस्टर्स बनाओ और उसको प्रेजेंट करो यहाँ पर। तो उसके लिए एक लेक्चर भी होता है। हमारे वाइस प्रिंसिपल थे डॉक्टर आनंद सहस्त्रबुद्धे सर, तो ही इज वेरी गुड इन दैट, बिकॉज वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि पोस्टर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हमने क्यों पोस्टर प्रेजेंट करना, आपको मैं बताऊं कि हम लोग एज अ रिसर्चर जब हम लोग पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं, हमारा रिसर्च वर्क प्रेजेंट करने जाते हैं, कोई भी अपने कॉन्फ्रेंसेज में, इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, तो हम लोग खुद पोस्टर्स प्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को वो आदत, वो जो ये डर है निकालने का, ये सब निकालने का हम यहाँ पर पूरा का पूरा काम करते हैं। तो यू विल बी अ प्रोएक्टिव पर्सन आफ्टर यू कंप्लीट योर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, एक बात ये, जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोगों को लगता है कि अरे यार ये कौन सा फालतू काम है, ये अपन नहीं करेंगे या अपने से नहीं होगा, ये जो सोचते हैं, ये लोग वैसे ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में नहीं दिखने वाले। और जो रेगुलर करते हैं वो टॉपर्स रहते हैं। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, मेरे स्टूडेंट जो आपके लास्ट टू लास्ट ईयर के बैच की जो लड़की थी, न्यांशी चौहान करके एक लड़की थी, पायल काड़े है, अश्विनी कोरपे है, शिकिल वंजारी है, दे ऑल आर नाउ टीचिंग इन अवर Mohta Science College. Nancy Chauhan is doing MSc in physics in campus. So आपको बताऊंगा, she was the president of Electronic Society last year, and she was good in academics also. So it doesn't mean कि आप अगर इधर काम करते हो तो उधर का नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। आप जब इधर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली उधर का भी अच्छे से हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये जितनी भी एक्टिविटीज है, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करो और आप इलेक्ट्रॉनिक्स को एंजॉय करो। और मैं अपने साइड से तो पूरी कोशिश करूंगा। नाउ ये एक्चुअली वर्चुअल क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू सी योर फेसेस ऑल्सो, व्हाट आर योर रिएक्शंस while I will be teaching you. So it is a मतलब एक्चुअली it should be like
कि I should be able to see your faces so that I should understand whether you are getting the things which I am teaching you or not. तो ये होना जरूरी है, पर अब नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं. बट स्टिल यू हैव अ फुल लिबर्टी कि आपको जब कभी भी जिस पॉइंट पर भी आपको ऐसा लगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है मुझे, तो यू आर फ्री टू आस्क. डोंट थिंक ऑफ अदर पर्सन कि उनको समझा है या नहीं समझा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक लास्ट बंदे तक के जो चीज नहीं समझ में आएगी तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, याद रखें. तो ये चीजें तो मैं अपने इसमें मेंटेन करता हूँ, राइट. तो अनलेस एंड अनटिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ाया है या क्या बताया है, आप लोगों को क्या सिखाया है, तब तक के मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. मैं पर्सनली अपने बारे में ये बता सकता हूँ कि आपको कोई भी चीज अगर पढ़ाई तो वो आप खुद आपके खुद के वर्ड्स में लिखने लायक न हो जाओ तब तक के मैं आपको पढ़ाते रहूंगा. So this is a commitment from my side, but one commitment I require from your side also, that you should be regular in the classes. बस इतना ही रखिए, you should be regular in the classes. That's the most important thing that I require from your side, nothing else. आप सिर्फ रेगुलर रहिए, टाइम पर आइए, डिस्टर्ब मत कीजिए. ऐसा ना हो कि आप बीच में क्लास छोड़ दिए और उसके बाद आप मेरे को थर्ड क्लास में पूछो सर ये नहीं समझ में आया. इट्स नॉट माय पर्सनल जॉब टू डील विद दोस थिंग्स, क्योंकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी है जो रेगुलर है, तो उनके साथ नुकसान ना हो. सिर्फ इतनी बात याद रखिए. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ मेरे लिए एक ही काम करना है कि आप रेगुलर रहें. बस हर क्लास में जब भी आपको कभी कुछ होता है तो यू शुड बी अटेंटिव. Nevertheless, I will also be going to put these videos on my YouTube channel. तो आप ये YouTube पर कभी भी देख सकते हो. हम लोग जो भी कुछ लेक्चर्स लेंगे ये पूरे के पूरे हम लोग YouTube पर डालने वाले हैं, राइट. सो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा कि हमारा क्लास मिस हो गया, अब हम क्या करें सर, वो नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां जाइए, वो वीडियो देख लीजिए. आपने क्लास अगर मिस किया ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम और सम अदर इश्यूज, हो सकता है क्लास आप मिस करो. आज का क्लास भी बहुत सारे लोग अभी लेट ज्वाइन किए, तो हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ. अभी मुझे फोन आ गया था तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, होता है. ऐसा अगर कभी हुआ तो आप लोग वहां जाकर वीडियोस देख सकते हो और उसको रिपीट भी कर सकते हो. तो ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई अभी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के वजह से, कि हम लोगों को वो क्लासेस रिपीट करने के लिए बहुत इजी है, राइट. सो दिस वाज आई होप टुडे एंड फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे होपफुली we will be conducting I will be conducting your classes, and we will be starting with our regular syllabus. First we will go with मैंने कुछ एक presentation बनाया था. Let me share my screen. So I hope this one is there. Yes. So एक second. Yes. So let me share my screen with you. So this was the first slide that I need to tell you, that on behalf of Department of Electronics and Shri Mathura Das Mohta College of Science, I welcome you all to BSc first year Electronics, and I wish you all the best, that you will be enjoying these classes, and I will be taking these classes like this same. So now these are some of the course objectives, and these are the things which we are going to learn. Some of the devices, if you are able to see. चंदन, आपने लाइन ड्रॉ की है, थोड़ा सा उसको मिटा दो, क्रप कर दो. So these are the some of the devices that we are going to study. This is oscilloscope, या हम लोग इसको बोलते हैं CRO, cathode ray oscilloscope, voltmeters, ohm meters, amp meters, ये सब रहेगा. These are some of the passive components, resistances, capacitances, inductor, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें रहेगी. फिर एक्टिव कंपोनेंट्स, ये आपके सिलेबस का पोर्शन है. एक्टिव कंपोनेंट्स में आपके आएंगे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स. तो हम लोग सब ये बेसिक चीजों से पढ़ने वाले हैं. देन वी विल बी वर्किंग ऑन सम ऑफ द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थिंग्स. हम लोगों ने कैसे क्या उसको डिवाइस करना है, तो वो सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव, and I hope for today it is more than enough. This is just a outline of what we are going to study in your next coming classes,
right? So be attentive, and it will be a fun for you people to understand those things. एक नया सब्जेक्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत बहुत मजा आएगा इसमें, कि आप लोग ये क्या मतलब कितना अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग इसको कितना एंजॉय करने वाले, एंड वी विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बिल्ड दोज सर्किट्स। तो सबसे पहले हमारा एक और शॉर्ट टर्म कोर्स भी है जो हम लोग अभी लेने वाले हैं, जो एक्चुअली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा नाम है उसका कोर्स का। इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक पूरा का पूरा एक सर्किट बनाने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, और उसके बाद उसको सोल्डर करने वाले हैं। सो तो बेसिक आइडियाज जो है आपके सोल्डरिंग के और आपके वोल्ट मीटर के और वोल्टेज या बाकी चीजें गिनने के, ये सब आपके वो आइडियाज उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो दैट कोर्स इज कमिंग अप, लेट अस होप फॉर गुड कि सबका सब नॉर्मल रूटीन में आ जाए और फिर आप लोग इसको एंजॉय कर पाए, राइट? So by now I hope this is more than enough for today. I will stop my sharing my screen, right? With that, I hope this is more than enough for you. From next Wednesday we will be starting with the rail bridge course. That bridge course is basically dealing with the connection of your 12th with the BSc first year syllabus, right? So we'll be clubbing those things, and for that we require a course that is called as a bridge course, right? So that bridge course we are going to start from next Wednesday. I expect you all to be attentive and you will be present in the class. Thank you. So by now I wish you all the best. Stay home, stay safe, take care, and keep attending my classes. Thank you very much. And also go and view my YouTube channel, subscribe it, and like videos if you can. Thank you very much for today. See you in next week, tomorrow, Wednesday, first lecture. If you have any questions, you can ask. Nancy, do you have any questions? No, sir. Thank you. So we'll be starting classes from next Wednesday, right? And we'll be starting first with the bridge courses. See you soon. Bye. Take care. Good day. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Thank you.